Light is composed of the 7 different colors. Vibgyor you have discussed. So the story starts from the Newton when he was able to tell by an experiment that light is composed of different 7 colors. It was known much earlier that light is composed of the different 7 colors, but practically it was shown by the Newton. As you know, the light which comes or enters through a window, if you place a prism in between the path of that light, then that light splits into different 7 colors. So that is the visible region, and visible light, it is being converted or splitted into the different colors, where violet color it vents much more, so it is coming at the top, whereby red color it vents least, so coming at the bottom. That is the simple light which is composed of the different colors. Nowhere there is a IR. Where is the IR? It was the Herschel Gibbs. Later on, he was able to tell that infrared light, it is below the visible region. So the whitest part at the bottom you are looking here, that is the infrared light, and it was shown by the Frederick William Herschel. How we can judge it? That is a simple experiment with which we are able to tell that this is IR. If you put a thermometer in the path, then the temperature in the thermometer it is reached. तो ये पीछे जो वाइट लाइट आपको नज़र आ रही है, तो वहाँ पर थर्मामीटर का बल्ब रखा है, तो थर्मामीटर का बल्ब जो है वो रेज हो जाता है, या उसमें जो मर्करी है दैट इज राइजिंग, सो दैट इज शोइंग द हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू द IR. If you place any sample in between the path, then you see there is a fall in the temperature. Why fall in the temperature? It is fall in temperature because the sample which you have placed in between the thermometer and the beam, some of the IR it is being absorbed by that sample. It is any chemical, it may be the water is also a chemical, so by the sense of chemistry, so it is absorbing the IR. That is why the mercury it is falling in the thermometer. You can repeat the experiment in order to check whether it is actually absorbing or not. So I am removing the sample. See here, temperature reached. Again I am inserting the sample, then temperature becomes down. It means infrared light, it is being absorbed by the sample. There is a, if you change the beam here, तो देखो जैसे आप प्रिज्म को थोड़ा रोटेट कर रहे हैं, तो प्रिज्म को रोटेट करने से इंफ्रारेड लाइट का डिफरेंट पोर्शन जो है वो प्रोजेक्ट हो रहा है किसके ऊपर, सैंपल के ऊपर, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या कर रही है, वेरी कर रही है, क्योंकि जो टेम्परेचर राइज और फॉल हो रहा है दैट इज शोइंग द डिफरेंट एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंफ्रारेड. इसका मतलब इंफ्रारेड में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उन डिफरेंट पार्ट्स की वजह से डिफरेंट एब्जॉर्प्शन, किसी में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा और किसी में एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो सकती है. सो दैट इज द absorption of the IR by the chemical or by the sample. So this is the complete spectra. X-ray at the top, then far ultraviolet, then visible region, and the bottom line where we are concerned with, it is near infrared, mid infrared and far infrared region. तो इंफ्रारेड के 3 रीजन शो किए हैं इसने.
नियर इंफ्रारेड रीजन जो है दैट इज वेरी मच नियर टू द रेड कलर, देन मिड इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड रीजन इज देयर. So that is the plane polarized light you are looking here. In this, one electric field component is there, another magnetic field component are there, and both the electric and magnetic field component, they are mutually perpendicular to each other, as well as they are perpendicular to the line of propagation, as well as perpendicular to the line of propagation. इसको प्लेन पोलराइज लाइट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है, पर्टिकुलर रेड कंपोनेंट ले लो या ब्लू कंपोनेंट ले लो, वो एक ही प्लेन में रोटेट कर रहा है. जो वैसे लाइट होती है सनलाइट, दैट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड. उसमें जो हर एक कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और कंपोनेंट जो हर एक प्लेन में जो ऑसिलेट करता है, लेकिन ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. कैसी लाइट है ये? प्लेन पोलराइज्ड लाइट. So the components, they are perpendicular to each other as well as they are perpendicular to the line of propagation. So wavelength, it is known to you, nothing to say about that. That what is the wavelength? Now let us see here what are the wavelength which are concerned with the near infrared and far infrared. ये आपको साइड में ब्लैक बार दिख रहा है नीचे जहां फार इंफ्रारेड लिखा हुआ है. तो फार इंफ्रारेड जो है इसमें वेवलेंथ जो है वो 500 माइक्रोमीटर है और इसके साथ उसने वेव नंबर दे रखा है जिसको म्यू बार लिखा हुआ है. एक्चुअली एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कई बार कंपैरिजन के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आती है दैट व्हाट इज द वेवलेंथ एंड व्हाट इज द एनर्जी, बिकॉज वन एंड wavelength and energy, they are contrary in the movement means or variation. One is increasing, another is the decreasing. What if you take 1 by lambda, then it becomes the mu bar. क्या बोलेंगे इसको? mu bar. And 1 by lambda, that is having the similarity in the variation of what? Similarity in the variation of the energy. तो जो वेरिएशन वेव नंबर की होगी वही वेरिएशन किसकी होगी? एनर्जी की होगी. तो फार इंफ्रारेड जो 20 सेंटीमीटर इनवर्स से है. जो वेवलेंथ अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 1 बाई लैम्डा किस में आएगा? सेंटीमीटर इनवर्स में, जिसको क्या बोला उसने? वेव नंबर. एज यू विल मूव द बार हियर, सो दैट इज द बार which is to be moved from here. So if I pick the bar, see here the wavelength above it is squeezing and squeezing. When I am reaching to the mid infrared region here, this is the mid infrared region, wave number becomes 1500 centimeter inverse, and as I am moving above and above, the wavelength simultaneously it is decreasing. It is near infrared region, it is 600 centimeter inverse. So it's the variation of the what? Variation of the wave number from 20 centimeter inverse to the 600 centimeter inverse. वैसे तो इसने 600 सेंटीमीटर से 900 सेंटीमीटर इनवर्स शो किया है, लेकिन जो IR स्पेक्ट्रा है दैट इज मेनली कंसर्न विद द 4000 एंगस्ट्रॉम इनवर्स, दैट इज द अपर लिमिट, एंड नीचे यहाँ 800 आ रही है और उस नीचे 200 आ रही है, लेकिन 500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो है दैट कम्स टू बी द रीजन ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा. कहां से लेके? 500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स. इसमें 500 से लेकर के 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो है, या हाँ 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक आपके पास जो है वो फिंगरप्रिंट रीजन आता है. कौन सा रीजन आता है? फिंगरप्रिंट रीजन. और 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक आपके पास पर्टिकुलर ग्रुप की वाइब्रेशंस आती हैं. किसकी आती हैं? ग्रुप वाइब्रेशंस. फिंगरप्रिंट रीजन इसीलिए बोलते हैं 500 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स को, कि ये पर्टिकुलर
कंपाउंड का आप कह सकते हैं एक्सरे है। एक्सरे मीन्स जैसे हाथ का एक्सरे होता है, हाँ जी हाथ का एक्सरे है, उसी तरह से अगर आप फिंगरप्रिंट रीजन आपको पढ़ना आता है तो बहुत आसानी से आप कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर जो वो आसानी से बता सकते हो। क्या इसमें मिथाइल है, क्या इसमें CH2 ग्रुप है या CH ग्रुप है, क्या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है या डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है या आयोडीन है या क्लोरीन है, ये आसानी से बताया जा सकता है एट इन द फिंगरप्रिंट रीजन। किस रीजन में? फिंगरप्रिंट रीजन में जो वो आप इस चीज को आसानी से जो वो बता सकते हैं। सो दैट इज द स्पेक्ट्रा एंड द वाइब्रेशंस इन द मॉलिक्यूल। सो दीज आर द वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल। तो देखो इसने कहां से 400 सेंटीमीटर इनवर्स से स्टार्ट किया हुआ है और 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक लेके गया है। कहां तक लेके गया है? 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं, आपके काम के नहीं है। एक क्लासिकल है, एक मॉडर्न है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूं आपको। ये मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसकी भी कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस में नहीं है कि हाँ जी किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है और कैसे इसको किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप जो वो सैंपल का IR रिकॉर्ड करते हो। जिस भी सैंपल का IR रिकॉर्ड करना हो, मोस्टली सैंपल सॉलिड स्टेट में लेते हैं हम और सैंपल को पोटाशियम क्लोराइड के साथ मिक्स करके उसका एक टैबलेट बनाते हैं एंड दैट टैबलेट इज प्लेस्ड इन द क्यूबिट विच इज शोन बिलो। और उस क्यूबिट को इसमें डाल देते हैं। वो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मीटर है सामने नजर आ रहा है, मॉनिटर नजर आ रहा है इसके ऊपर, यहां पर मॉनिटर है इसका। तो इस मॉनिटर में आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर IR स्पेक्ट्रा आता है। कैसा आता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड। व्हाट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म्ड? वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि IR और FTIR में क्या डिफरेंस है। IR means simply infrared and where FTIR it is Fourier transformed infrared spectra. So that is a structure of the molecule, simple molecule where two masses they are connected by a spring here. Spring इसलिए शो कर रखा है कि जब ऑसिलेशन होती है तो उसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है बॉन्ड में। तो बॉन्ड की फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए आप एक मॉलिक्यूल के मॉडल को सिंपली जो कैसे शो कर सकते हो? टू बॉल्स विद द मास m एंड अटैच्ड विद स्प्रिंग। स्प्रिंग के ऊपर उसने K लिखा है। K डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। और फिजिक्स के तौर पर बोलना है तो स्प्रिंग में K को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? फोर्स कांस्टेंट। अगेन फोर्स कांस्टेंट जो है उससे ये पता चल जाएगा आपको कि स्प्रिंग हार्ड है या स्प्रिंग सॉफ्ट है। सॉफ्ट स्प्रिंग में आसानी से ऑसिलेशन पॉसिबल है, हार्ड में डिफिकल्टी होगी। तो दैट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। किसकी रिफ्लेक्शन है ये? स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड की रिफ्लेक्शन है। सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ द दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है ये। जो इस वक्त इसकी स्टेट है, इसमें d डिस्टेंस है किसके ऊपर? किसके बीच में? दो एटम्स के बीच में। दैट इज द बॉन्ड लेंथ। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? d। कॉरस्पॉन्ड टू दिस पोटेंशियल एनर्जी इसमें 0 है। यानी जब आपका स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं किया हुआ है तो उसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। अगर आप उसको कंप्रेस करते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कंप्रेस करने से क्या होगा? वो बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा। और अगर आप उसको खींच करके लंबा कर देते हो तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो होगा क्या कि वो जो है स्प्रिंग अंदर को कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। So it means whenever you are stretching the spring or you are compressing the string, there is a change in the potential energy, and that energy is governed by the relation E equal to half k x square. तो जैसे कि मैथ में आपने पढ़ा होता है y square is equal to 4ax. For the time being यहाँ सपोज कर लो क्या लिखा हुआ है? E is equal to half k x square. So that can be splitted as x square is equal to 2e divided by k. That means it is a equation of parabola. X square is equal to something, y square is equal to 4ax. That is the equation of a parabola. So the potential energy diagram, it is a parabolic curve here. You are looking toward this. This is a parabolic curve.
जैसे ही आप इस स्प्रिंग को जो है वो क्या करते हो, ऑसिलेट करने की कोशिश करते हो या स्मॉली इसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करते हो by compressing or stretching it. So see here, this way the molecule is compressed or molecule it is being stretched. बॉन्ड जो स्ट्रेचिंग हो रही है उसकी या बॉन्ड की क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है. जैसे ही बॉन्ड कंप्रेस होता है पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो इस साइड मूवमेंट शो कर रहा है ये, और जैसे ही ये इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी जो वो इंक्रीज जीरो से आगे और कंप्रेस करने पे जीरो से पीछे जा रही है. इट मीन्स बाय कंप्रेसिंग द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव हेयर, दैट इज फॉर द इंडिकेशन की कंप्रेशन हो रहा है, और बाय द स्ट्रेच द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स पॉजिटिव. दोनों केस में एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. क्या कर रही है, इंक्रीज. यहां इसकी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जिसको मैंने बॉन्ड लेंथ बोला दैट इज डी, वो इसकी बॉन्ड लेंथ है. लेकिन इसमें कितने यूनिट का गैप आ रहा है, जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो x यूनिट ये कम हो जा रही है, सॉरी एक्सटेंड हो जा रही है, और जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो x यूनिट ही क्या हो रही है, ये कंप्रेस हो जा रही है या कम हो जा रही है. जैसे मान लो 100 जो है वो पिकोमीटर दैट इज द बॉन्ड लेंथ, तो उसमें 30 यूनिट्स ऐड कर दो तो 130 स्ट्रेच्ड लेंथ हो गई, और 30 यूनिट्स लेस कर दो तो 70 जो है उसकी कंप्रेस्ड लेंथ आएगी. इस तरह का इक्वल मूवमेंट टुवार्ड द कंप्रेशन साइड और टुवार्ड द स्ट्रेच साइड, इट इज ए शो ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ऑसिलेशंस डैम्प नहीं होती हैं, उसमें जो है इक्वल जैसी ऑसिलेशन आएगी आपके पास. जितना स्ट्रेच होगा उतना उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा. सो दैट इज ए you can say show off of the simple harmonic oscillator. किसका शो ऑफ है ये, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का शो ऑफ है. कैसे कैसे वेरी कर सकती है यहां पर ये. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन वट एवर इट इज डिपेंडिंग अपॉन के फोर्स कांस्टेंट. इट इज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द मास. किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर. अब कैसे कैसे देख सकते हैं यहां से कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऑसिलेशन की, कम होगी या ज्यादा होगी. तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के. इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगी. व्हाट मीन टू से, जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसको ऑसिलेट करने के लिए उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगी. जैसे ट्रिपल बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा. डबल बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट कम, तो उसकी ऑसिलेशन के लिए एनर्जी या फ्रीक्वेंसी कम लगेगी. सिंगल बॉन्ड तो फोर्स कांस्टेंट और कम होगा तो फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट लगेगी. तो हो सकता है एक में 800 हो सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए वही 1200 या 1600 हो जाए, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वही कितनी 2200 या 2500 हो जाए सेंटीमीटर इनवर्स. सो द वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दैट इज द म्यूचुअल सेम रिफ्लेक्शन ऑफ द एनर्जीज. सो इसीलिए मैंने इसको फ्रीक्वेंसी बोलने की बजाय क्या बोला, सीधा वेव नंबर बोल दिया, दैट इज द सेंटीमीटर इनवर्स. सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टू फैक्टर्स. वन इज के दैट इज द फोर्स कांस्टेंट, मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, और दूसरा जो है दैट इज मास ऑफ द एटम्स. सो सी हियर, व्हेन the larger force constant is there, तो बेल थोड़ा सा स्क्वीज्ड हो गया है, इसमें मूवमेंट क्या हो गई है, थोड़ी सी फास्टर हो गई है. थोड़ी सी क्या हो गई, फास्टर हो गई है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है. इट इज वाइब्रेटिंग विद द यू कैन से विद लेस टाइम लैप्स. तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो यहां पर ऑसिलेशंस की ज्यादा है. अगर आपके पास जो है वो फोर्स कांस्टेंट कम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी. तो इसमें आपका जो पैराबोलिक का वो फ्लैटर हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा. एंड इफ यू आर हैविंग लार्जर मासेस, सो दीज आर द लार्जर मासेस, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसमें जो है वो ज्यादा रहेगी, बिकॉज इट इज ड्यू टू, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन लेस, क्योंकि म्यू जो है फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है मास के. तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, लेस होगी. सो जितनी कम मास होगी एटम्स की
जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो वो उतनी ज्यादा होगी। क्या कहा मैंने? जितना कम मास होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो वो ज्यादा रहेगी। दैट इज द simple harmonic oscillator that we have said about this. Now this is the quantum mechanical model of this simple harmonic oscillator. You see here different green lines are indicated as well as one red line is indicated. When you calculate the energy of simple harmonic oscillator with the help of the quantum mechanics, then En is equal to n plus half h mu is the value of the energy. E equal to half kx square, that is related with the classical concept here. n जो है वो उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है दैट इज द क्वांटाइज्ड एनर्जी। कैसी एनर्जी है? क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो जब आप n की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं दैट इज द 0 पॉइंट एनर्जी, इट इज हाफ एच म्यू। n इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस हाफ दैट इज हाफ एच म्यू आ जाएगा। और जब इसको 1 पुट करोगे तो 3/2 एच म्यू, ग्रीन ऊपर वाली ग्रीन लाइन आ जाएगी। जब 2 पुट करोगे तो 5/2 एच म्यू आ जाएगा। सो दैट इज द एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी दैट इज बीइंग क्वांटाइज्ड एंड इट इज क्वांटाइज्ड बाय ए गैप ऑफ एच म्यू। कितने का गैप आ रहा है? हाफ एच म्यू, 3 एच म्यू, 5/2 एच म्यू। सो देर इज ए गैप ऑफ 3 h mu, sorry, single h mu in each of these lines. So if it absorbs, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो ये कहां तक शिफ्ट हो सकता है? इट इज शिफ्टिंग टू द फर्स्ट स्टेट ओनली। इसका मतलब कितना गैप आना चाहिए, या इसका जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है? डेल्टा एन इक्वल टू प्लस माइनस 1। हियर आई हैव शोन द सिलेक्शन रूल, डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो हाफ एच म्यू से कहां चेंज हो जाएगा? ये 3/2 एच म्यू से। तो एट ए टाइम सिंगल एच म्यू की एब्जॉर्प्शन ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सिंगल एच म्यू एब्जॉर्ब होता है, ये डायरेक्टली सेकंड स्टेट पे भी जा सकता है, लेकिन सेकंड स्टेट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका जो है इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेट आती है। तो अगर यहां से भी ये एब्जॉर्ब करता है अगर फर्स्ट लेवल पे और फिर ये एब्जॉर्ब करता है, दैट कैन मूव टू द अपर 5/2 h mu. So I am emitting the radiation coming down. By emitting the radiation again it is coming down. So जो सिलेक्शन रूल है वो बोलता है कि इमीडिएटली नेक्स्ट जो एम्प्टी आपके पास एनर्जी लेवल आ रहा है केवल वाइब्रेशनल चेंज उतनी ही होगी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पे, या ग्राउंड स्टेट से ज्यादा सेकंड स्टेट तक। इससे ऊपर जो वो वाइब्रेशनल चेंज जो वो नहीं आती है या नहीं होती है। So that is the graph here which is indicating